Good morning, dear friends. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Well, dear friends, today we are going to talk about the new lesson and new story in English Standard 5th. Okay, I hope you are enjoying English learning at home. So, now before starting our new lesson, dear friends, I want to ask you some questions. So, on which day do you get a lot of gifts? So, dear friends, tell me, have you ever got some gifts or do you like gifts? Yes, gifts. जब गिफ्ट्स की बात आती है तो everybody likes it, isn't it? Yes. So we got gifts on, yes, on our birthday. Great. Again, and when do you purchase gifts for others? Do you purchase or have you ever given some gifts or you have bought some gifts for others? Yes, for your friend's birthday. What type of gifts was that? Okay, chocolate, pencil, teddy bear. Great. Oh, bowl set. Oh, watch. Yes. Where are the things? And again, tell me some more places where you took or your parents used to take with them gifts. Okay, for wedding ceremony, right? Correct. Reception. All right. So dear friends, gifts are always amazing, isn't it? Gifts हमेशा हम बहुत amazing होते हैं and everybody likes to have lot of gifts. Correct. So when you got some gifts in a packing, so डू यू ओपन एट दैट टाइम? क्या आप उनको उसी समय में एट द सेम टाइम एज सुन एज यू गॉट द गिफ्ट विल यू ओपन? एट द सेम टाइम क्या आप उसी समय से ओपन करते हैं इमीडिएटली? ऑब्वियसली नॉट, बट यस, एवरीबडी वांटेड टू सी एज अर्ली एज पॉसिबल कि व्हाट इज इनसाइड द पैकिंग. ओके, so when you got some lot of gifts, so do you want to open them as soon as you got them? Yes, obviously everybody wants and everybody was eager to know what was inside the gift pack, correct? And when do you get a chance to see what gifts your friends have given you? Okay, when the program or when the party is over. जब पार्टी खत्म हो जाती है, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो हम सब घर में बैठ जाते हैं और हमारे मन में बहुत ईगरनेस होता है. वी आर डेस्परेटली wanted to know कि what is in that box and what is in this box, correct? Yes. So again, dear friends, today we are going to talk about a story about a girl who was given a gift, okay, and told that she couldn't open the gift. अगर समझ लीजिए कि on your birthday lot of people have bought lot of gifts for you and they want you कि oh you, this gift is for you but you should not open these. तो कैन यू बिलीव, क्या आप ऐसे गिफ्ट को लेना पसंद करोगे या क्या आपको खुशी होगी? ऑब्वियसली नॉट. ओके, सो व्हेन द गिफ्ट फॉर अस, सो इट शुड बी ओपन, करेक्ट? So let's see what happened with the girl in the story who has been told that she could not open the gift. Let's see what was in the gift, that box. And so dear friends, today we are going to talk about unit number 8, Pandora's box. So what is the name of our story? Pandora's box. Okay, so let's see, let's go to the story. So dear friends, I am reading line by line. Please listen carefully, okay, and try to get its meaning. Sometimes you are told not to touch something or not to open a package or a box, correct? हमें बहुत बार ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर टच मत करो, इसको छुओ मत, इसको खोलना मत, इस बॉक्स को टच करना, है ना? Also lot of times, dear friends, when you or father do some shopping or you when you go to some shopping mall
You watch lot of signs and symbols where there's a danger sign, cross signs, such types of don't touch, poison, such things are written, correct? And these things or these warnings makes us aware that we should not touch it, should not come in contact with such things, because they may be harmful for us, they may be dangerous for us. And that's why our elder people, हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, दे ऑलवेज used to tell us that do not touch here and do not go there, do not open without asking. ओके, कोई भी चीजों को बिना पूछे लेना नहीं, उनको छूना नहीं, और उनको ओपन तो बगैर किसी भी अनजान पैकेज को खोलना नहीं. इट मे बी डेंजरस फॉर यू एंड ऑल, करेक्ट? सो ऐसा होता है. बट when people tell us that you should not touch something or should not open the package or box, then such types of things makes us very very curious. ऐसी चीजें हमें क्यूरियस बनाती, मीन्स हम बहुत ही फिर उन चीजों के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, वेरी ईगर टू नो व्हाट इज इनसाइड दैट. ओके, दिस मेक्स अस वेरी क्यूरियस. यू कीप लुकिंग एट इट, हम बार बार उसको देखते रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं. ओके, you desperately want to see what would happen if you touched what you are not to touch or opened what you are not supposed to open. and फिर हमारे दिमाग में वही बात चल रही, यू आर डेस्परेटली, मतलब मन में हम वही सोचते हैं, वांट टू सी व्हाट वुड हैपन इफ यू टच व्हाट यू आर नॉट टू टच. जब हमें ऐसी चीजों को टच करने के लिए मना किया जाता है, तब हमारे मन में डेस्परेटली ख्याल आता है कि अगर मैंने इस चीज को खोला, इस चीज को टच किया, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा. ये हमारे मन में बार बार ख्याल चलता है और हम उस ख्याल से बाहर ही निकल नहीं पाते, बिकॉज वी वर वेरी मच ईगर, एक्साइटेड टू नो व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स ऑन दैट पर्टिकुलर पैकेज. समटाइम्स योर क्यूरियोसिटी कैन गेट यू इनटू अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल. और यही जो हमारी कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है, जानने की उत्सुकता जो होती है, ईगरनेस होता है, ऐसी क्यूरियोसिटी के कारण कभी कभी हम बहुत बड़े मुसीबत में भी दोस्तों फंस जाते हैं. इसलिए हमेशा बड़ों ने अगर कहा है कि यहाँ पर टच मत करो, डोंट गो हियर, डोंट टच हियर, तो हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, बिकॉज वो हमारे ही फायदे के लिए होती है. सो लेट्स रीड दिस स्टोरी अबाउट पैंडोरा एंड देन डिसाइड whether you should obey instructions or disobey them. तो चलो देखते हैं इस पैंडोरा की स्टोरी को, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर आप ही डिसाइड करना दोस्तों कि क्या आपने बड़ों की इंस्ट्रक्शंस को, बड़े की बातों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए. सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ पैंडोरा's बॉक्स. ऑलराइट, सो there was a time when people lived happily on the earth. They had no pain, no disease, and no problems, but this happiness was not going to last forever. एक समय की बात है जब पूरे धरती पर पूरे लोग खुशी से रहते थे. There was a time when people lived happily on the earth. They had no pain. वहां पर धरती पर लोगों को कोई दुख नहीं था. ओके, कोई भी पेन नहीं था. ओके, उनको कोई भी दुख नहीं था. नो डिसीज, कोई भी वहां पर रोग नहीं था. लोगों में कोई भी रोगों के लक्षण नहीं थे, सब खुश थे. नो प्रॉब्लम्स, कोई समस्या नहीं थी. बट दिस हैप्पीनेस वाज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर. लेकिन ये उनकी खुशी हमेशा के लिए नहीं थी. क्या हुआ फिर, चलो देखते हैं. द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द ग्रीक गॉड्स वाज ज़्यूस. ओके, उस समय में हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीक माइथोलॉजी, द स्टोरी ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी. ओके, एंशियंट ग्रीक में सबसे जो पावरफुल गॉड थे, भगवान थे, वो ज़्यूस थे. ओके, ही वाज वेरी एंग्री विद टू ब्रदर्स कॉल्ड एफिमेथस एंड प्रोमेथस. ओके, एक समय की बात है, जो ग्रीक गॉड, पावरफुल ग्रीक गॉड ज़्यूस थे, वो दो भाइयों से, एपिमेथस और प्रोमेथस, ये दो भाई थे, उनसे काफी गुस्सा हो गए थे. ही डिसाइडेड दैट दे नीडेड टू बी पनिश्ड. और उसने सोचा कि इन दोनों भाइयों को पनिशमेंट, दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस की बात नहीं माने थे और उन्होंने धरती पर जो इंसानों के लिए ठंड से बचाने के लिए जो आग थी, वो आग लोगों को उन्होंने दे दी थी. इसलिए जेस, ये गॉड, काफी उनसे गुस्सा हो गए थे. हालांकि ये दोनों भाइयों ने अच्छा सोचा था लोगों के बारे में. ओके, तो ज़्यूस गॉड काफी एंग्री हुए और उसने सोचा कि इन दोनों भाइयों को पनिशमेंट करना चाहिए. ही टुक द हेल्प ऑफ हेफेस्टिस
द गॉड ऑफ द क्ले। ओके, उसने इनको सबक सिखाने के लिए, इन दोनों भाइयों को, इफिमेथस एंड प्रोमेथस को सबक सिखाने के लिए हेफेस्टिस की जो गॉड ऑफ क्ले थे, जो मिट्टी के भगवान, मिट्टी बनाने के भगवान थे, मिट्टी के भगवान थे, वो उनको आह्वान किया, उनको बुलाया एंड कहा एंड मेड वर्कर्स एंड मेड अ वुमेन आउट ऑफ क्ले। और उसने आदेश दिया एफिसियंस को कि वो अपने क्ले से, मिट्टी से और मेटल वर्क से एक सुंदर स्त्री को बनाए। द गॉडेस एथेनी ब्रीथ इनटू द क्ले फिगर एंड द फिगर केम अलाइव। तो उस एफिसियंस ने, द गॉड ऑफ क्ले एंड मेटल वर्कर्स, उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई वुमेन की, स्त्री की। द गॉडेस एथेन ब्रीथ इनटू द क्ले फिगर एंड द फिगर केम अलाइव। और जो गॉडेस एथेन थी, उसने उस फिगर में, उस लड़की के, सुंदर लड़की के उस मूर्ति में जान फूकी और वो मूर्ति जिंदा हो गई। ओके, जीवंत हो गई। अलाइव केम अलाइव मीन्स उस सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। द गॉडेस एफ्रोडाइट मेड द वुमन वेरी ब्यूटीफुल। द गॉडेस एफ्रोडाइट मेड द वुमन वेरी ब्यूटीफुल। और उस स्त्री को, गॉडेस जो देवी थी एफ्रोडाइट नाम की, उसने उसको काफी सुंदर बनाया, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनाया। हर्मीज द मैसेंजर ऑफ द गॉड्स टॉट द वुमन हाउ टू बी चार्मिंग एज वेल एज कनिंग। हर्मीज जो था, दो मैसेंजर ऑफ गॉड था, दूत था, उसने उस स्त्री को सिखाया, वुमेन ब्यूटीफुल स्त्री को सिखाया हाउ टू बी चार्मिंग, कि कैसे खूबसूरत दिखा जाए, एंड एज वेल एज कनिंग, कैसे किस तरह से लोगों को अपने ट्रिक में फंसाया जाए, उन लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। जेस नेम्ड वुमेन पैंडोरा। जेस इस ग्रीक पावरफुल गॉड ने उस वुमेन का नाम रखा पैंडोरा। वो उसने अपनी डॉटर के समान ही उसको रखा, लेकिन उसने एक्चुअली इस पैंडोरा को बनाया था उन दोनों भाइयों से बदला लेने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद द पैंडोरा। सो देन जेस नेम द वुमेन पैंडोरा। पैंडोरा वाज देन सेंट टू इफिमेथस एज अ गिफ्ट। इफिमेथस एंड प्रोमेथस दो भाइयों थे, तो दोनों की तरफ पैंडोरा को भेजा गया। ज्यूस इस गॉड ने भेजा एज ए गिफ्ट। हिज ब्रदर प्रोमेथस वाज मच क्लेवरर। जो प्रोमेथस भाई था वो काफी होशियार था और वो समझता था कि ये जरूर कुछ गड़बड़ है, इस पैंडोरा को जो भेजा है हमें जिसने, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। ही टोल्ड इफिमेथस नॉट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। ओके, so he felt this was a trick that would bring trouble on them. उसने अपने भाई, छोटे भाई को, इफिमेथस से कहा था कि इस गिफ्ट को, इस पैंडोरा को वो एक्सेप्ट ना करे। उसे ये पता चल चुका था कि उसे लगता था कि ज्यूस गॉड ने हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करने के लिए ये ट्रिक अपनाई है और हमें ये गिफ्ट भेजा है। लेकिन जो इफिमेथस ये भाई था वो पूरा बेवकूफ था और वो अपने भाई की नहीं सुनता था, और इस सुंदर पैंडोरा को देखकर वो उस पर मंत्रमुग्ध और मोहित हो चुका था, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता। इपीमेथस फाउंड पैंडोरा टू बी वेरी प्रिटी एंड चार्मिंग as well and thought that such a girl could not harm them in any way. जो इपीमेथस को लगा कि पैंडोरा, ये लड़की इतनी सुंदर और इतनी चार्मिंग, अट्रैक्टिव है कि ये ऐसी सुंदर लड़की किसी का क्या बुरा कर सकती है। He married her. उसके भाई प्रोमेथियस के मना करने के बावजूद भी इपीमेथस ने पैंडोरा से शादी कर ली। He married her and she settled down with him in her new home. उसने इपीमेथस से शादी कर ली, इपीमेथस ने उस पैंडोरा से शादी कर ली और अब पैंडोरा इपीमेथस के साथ में उसके नए घर में रहने लगी। ओके, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स सी। जेस गिव देम अ वेडिंग गिफ्ट। फिर एक दिन ज्यूस गॉड आए और उनकी शादी के मौके पर उन्हें वेडिंग गिफ्ट दिए। ओके, जैसे कि हमें पता है कि वेडिंग पर हम दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं रिसेप्शन में। ओके, सो इन द सेम वे जेस गिव देम अ वेडिंग गिफ्ट, शादी का उपहार स्वरूप। इट वाज अ ब्यूटीफुली कार्ड बॉक्स। वो इतना सुंदर कार्ड बॉक्स था, मतलब उसमें बहुत ही नक्शीदार काम, बहुत ही ड्राइंग की गई थी और सुंदर बॉक्स था। पैंडोरा लुक्ड एट इट एंड थॉट, आई वंडर व्हाट दिस बॉक्स कंटेन्स। पैंडोरा ने जब उस बॉक्स की तरफ देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि आई वंडर व्हाट दिस बॉक्स कंटेन्स, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने सुंदर खूबसूरत बॉक्स के अंदर में क्या खूबसूरत चीज होगी। हाउ योर जेस had told her that she must not ever think of opening the box.
लेकिन जब बॉक्स दिया जेस ने, तब उसने ये वार्निंग भी किया कि ये बॉक्स आपके लिए है, लेकिन आपने इस बॉक्स को खोलना, यू मस्ट नॉट एवर थिंक ऑफ ओपनिंग द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलने का सोचना भी मत। बिफोर गिविंग हर द बॉक्स, Zeus had locked it with a big strong lock, और उस बॉक्स को गिफ्ट देने के पहले उसने जेस इसने क्या किया, एक बहुत बड़े ताकतवर मजबूत लॉक्स उस बॉक्स को लगा दिया। Zeus had also made sure that he gave her the key, लेकिन Zeus ने लॉक तो लगाया, लेकिन साथ में उसने ये भी ध्यान रखा कि उसकी चाबी उसने पैंडोरा को दे दी। Maybe he wanted to taste how strong she was, हो सकता है कि Zeus ये गॉड, ग्रीक गॉड, पावरफुल गॉड, देखना चाहता था कि पैंडोरा को उसने जो वार्निंग दी थी कि इसको खोलना नहीं, वो उसको टेस्ट करना चाहता था कि वो कितनी उसकी बात मानती है। Would she have the strength to obey him or would her curiosity make her disobey him? वो देखना चाहता था कि क्या उसका गिफ्ट उसको इतनी स्ट्रेंथ, क्या पैंडोरा उसकी बात को मानती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, या पैंडोरा की जो क्यूरियोसिटी होती है नई चीज को जानने की, देखने की, कि उस क्यूरियोसिटी के कारण वो उस जियस गॉड को डिसओबे करती है, ये देखना चाहता था। और डिड ही वांट हर टू ओपन द बॉक्स, या शायद ये भी हो सकता था कि जियस जानबूझकर चाहता था कि वो पैंडोरा ये बॉक्स खोले। ओके, तो इस तरह से उसने वो वेडिंग गिफ्ट दिया था, एंड दैट वाज नेम्ड एज ए Pandora's box. Okay, then what happened next? Let's see. Pandora kept looking at the box every time she entered the room where it was kept. She said, Epimetheus, why can't we open it and see what is in it? जब पैंडोरा ने उस बॉक्स को अपने रूम में रखा था, जब भी वो उस रूम में आती थी और उस बॉक्स के तरफ देखती थी, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती थी। और एक दिन उसने कहा, इपिमिथस से कहा कि इपिमिथस, हम इस बॉक्स को क्यों ओपन नहीं कर सकते और देख सकते इसके अंदर में क्या है। सो उसके हस्बैंड इपिमिथस ने कहा, ओ जस्ट लीव इट अलोन, said her husband. He took the key and kept it on a shelf. उसने उससे चाबी ली और शेल्फ पे रख दी। बट पैंडोरा की इस बात से सहमत नहीं थी। पैंडोरा कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द बॉक्स, लेकिन पैंडोरा के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि इस बॉक्स के अंदर क्या था, क्या था, और वो जानना चाहती थी कि उस बॉक्स के अंदर में क्या है। She wanted to open it and see what lay inside it. वो बहुत बार उसकी इच्छा हुई कि उस बॉक्स को वो खोले और उसके अंदर की चीज को देखे, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता था और डर आता था। Why she thought, would I be given a box as a gift and then told not to see what was in it? ओके, वो ये भी सोचती थी कि ऐसा मुझे क्यों, किसी ने मुझे ऐसा बॉक्स गिफ्ट किया जिसको मैं खोल ही नहीं सकती, ऐसा गिफ्ट किस काम का। ओके, एंड इन दिस वे दैट Pandora was thinking all about the box and she was thinking about how to open it. Okay, and then Pandora's curiosity made her open the box one day, and then what happened, how did she open that box and what happened to her, we will see in the next grade. Till then, dear students, read this story properly, try to find out difficult words meanings and learn well. Thank you, see you in the next period.